عالم اسلام پر اپنی رائے دینے کے لیے آج ہمارے درمیان ہیں اسلامی ممالک کی دھڑکنوں پر نظر رکھنے والے ماہر ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، جو انڈین کونسل آف ورلڈ افیئرس میں فیلو ہیں۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے عالم اسلام اس ہفتے میں، اور شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت نکالا۔ اور آئیے عالم اسلام اس ہفتے کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب سے۔ سنیچر کو سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر ہوئے حملے کا ذمہ دار امریکہ نے ایران کو مانا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ یہ بات یقینی دکھائی دے رہی ہے کہ سنیچر کو سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملوں کے پیچھے ایران کا ہی ہاتھ تھا، جبکہ ایران نے امریکی الزامات کو مسترد کر دیا ہے۔ حالانکہ حبشی باغیوں نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے، تاہم امریکہ کو یقین نہیں ہے۔ سعودی عرب کی تیل تنصیبات پر حملے کے بعد تیل کی پیداوار کافی متاثر ہوئی ہے، اور عالمی سطح پر تیل کی سپلائی میں بھی کافی کمی آئی ہے، اور تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ دیکھیے یہ رپورٹ۔ امریکہ نے ایران کو ٹھہرایا مورد الزام۔ ٹرمپ نے کہا حملے میں ایران کا ہاتھ، ایران نے امریکی الزامات کو کیا مسترد۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ بات یقینی دکھائی دے رہی ہے کہ سنیچر کو سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملوں کے پیچھے ایران کا ہی ہاتھ تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ کسی اقدام کا فیصلہ کرنے سے قبل مزید ثبوت چاہتا ہے، تاہم وہ پر امید ہیں کہ جنگ کا خطرہ ٹالا جا سکے گا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مزید کہا کہ سعودی عرب امریکہ کا کلیدی اتحادی ہے، جس کی مدد کے لیے وہ تیار ہے۔ اس سے قبل امریکہ کی جانب سے ایران کو ان حملوں کے لیے ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے پیر کو اس دعوے کے ثبوت کے طور پر کچھ تصاویر بھی جاری کی گئی تھی۔ تاہم ایران کے صدر حسن روحانی نے ان الزامات کی تردید کی ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ یمنی عوام کی جانب سے رد عمل ہے۔ سعودی عرب کی قیادت والے اتحاد نے بھی راست طور پر ایران کا نام لینے سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ معاملے کی ابتدائی جانچ سے ایسے اشارے ملے ہیں کہ ان حملوں میں ایرانی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا۔ سنیچر کو سعودی عرب میں بقیق اور خریس کے علاقوں میں سعودی تیل کمپنی آرامکو کی تنصیبات پر ہونے والے حملوں کی ذمہ داری گرچہ حوثی باغیوں نے لی ہے، تاہم امریکہ کو اس میں شک ہے۔ سعودی تیل تنصیبات پر حملے میں دنیا میں تیل صاف کرنے کا سب سے بڑا کارخانہ متاثر ہوا ہے۔ ان حملوں کے بعد جہاں کمپنی کی نصف پیداوار معطل ہو گئی ہے، وہیں تیل کی عالمی رصد میں 5% کی کمی آئی ہے۔ سعودی عرب میں تیل کی تنصیبات پر حملوں کا اثر عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پر بھی پڑا ہے، اور پیر کو بازار کھلتے ہی عالمی منڈی میں تیل کی قیمت گزشتہ 4 ماہ کی بلند ترین سطح کو جا پہنچی۔ بتایا جاتا ہے کہ سعودی تنصیبات کے مکمل طور پر بحال ہونے میں کئی ہفتے لگ سکتے ہیں۔ سعودی کمپنی آرامکو کے مطابق ان حملوں کے نتیجے میں پیداوار میں 5.7 ملین بیرل روزانہ کی کمی آئی ہے۔ اسی بیچ سعودی عرب کے وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے مقام حملہ کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ذخیرہ اندوز کیے گئے تیل کا استعمال کرتے ہوئے پیداوار میں کمی کا کچھ ازالہ کیا جا سکے گا۔ سعودی وزیر کا کہنا ہے کہ یہ حملہ محض سعودی عرب پر ہی نہیں کیا گیا، بلکہ عالمی سطح پر تیل کی ترسیل اور اس کی سیکیورٹی پر کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ سعودی عرب دنیا میں تیل برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، جو 7 لاکھ بیرل یومیہ سے زیادہ تیل برآمد کرتا ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، یہ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے جیسے اس سے قبل برطانیہ والے معاملے میں بھی تھا کہ ایران نے ان کے ٹینکر پر حملہ کیا اور اس کو لے کر ہوا۔ اب یہاں جو ہے تیل تنصیبات ہیں وہ بھی سعودی عرب کی ہیں، تو یہ معاملہ کیا بہت زیادہ اب آگے بڑھنا چاہتا ہے، یا بڑھانا ہوگا، یا یہ یہاں پر آ کے کچھ اب فیصلہ ہو جائے گا؟ دیکھیے تحسین صاحب، اس کا معاملہ جو پورا کا پورا معاملہ ہے، یہ مذاکرات کا بالکل ایبسنٹ ہونا ہے۔ اس پورے خطے میں دیکھیے پچھلے 7-8 سال سے صرف جنگ ہے، بحران ہے، لیکن کہیں بھی کسی بھی طرح کی مذاکرات یا مکالمات نہیں ہو رہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کو کوئی بات چیت شروع کرنی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا، تبھی تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو لگے گا ہاں بھائی یہ چیزیں کچھ کرنی ہیں۔ اور امریکہ کا جہاں تک معاملہ ہے، ان کا سینکشن ہے، ان کا انڈیویجول سینکشن ہے، تو پورے کے پورے جو سفارتی تعلقات ہیں پوری طرح بند ہیں۔ تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1 سال سے، اور پرٹیکولرلی جب سے یو ایس نے اپنے طور پہ
جو न्यूक्लियर डील से विड्रॉ किया है, उसके बाद एक अलग तरह का बहरान आ गया। लेकिन उसके बाद ये महसूस किया जा रहा था ना कि अमेरिका यहाँ तक हुआ कि वो रूहानी से मुलाकात के भी मुतमन्नी थे, और उधर से रूहानी ने भी, सदर रूहानी ने कहा कि नहीं हम इसके लिए तैयार नहीं है, पहले न्यूक्लियर वो ख़त्म हो। यूरोपियन जो ममालिक हैं वो कोशिश भी कर रहे थे। लेकिन अब ये जो वाक़या है जिसमें अगर वाकई ईरान ऐसे वक्त में मुलव्विस होना चाहेगा इन सब इस तरह के अटैक्स वगैरह पर? देखिए, इस पूरे खत्ते में कम से कम पिछले 7-8 साल से सिर्फ ब्लेम गेम है, और ये मामला सऊदी ईरान का कम है, ये अमेरिका ईरान का ज़्यादा है। अगर आप देखें तो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी बहुत सारे इख्तलाफात हैं। बोल्टन का जाना, पोम्पेयो का अलग स्टेटमेंट देना, और सिर्फ ही अमेरिका कह रहा है कि ईरान जिम्मेदार है, न सऊदी अरब ने नहीं कहा। सऊदी अरब ने सिर्फ ये कहा कि अटैक जो है वो शुमाली हिस्से से हुआ, उसने इशारतन कहा ईरान इराक, लेकिन उसने नाम नहीं लिया ईरान इराक का। हूथी ने जिम्मेदारी ली है। तो ये जो मामला जो ये लग रहा है, जहाँ तक रूहानी की मीटिंग की बात है, लेकिन एक तरफ अगर आप देखें उनके जो स्पिरिचुअल लीडर खामनी साहब ने कहा कि कोई बातचीत नहीं होगी, तो ये पूरी की पूरी जो नवैयत है क्राइसिस की, मुझे लगता है कि मुज़ाकरात को शुरू करने के लिए एक कहीं न कहीं से एक प्रेशर है, और दोनों तरफ से प्रेशर है। अमेरिका भी चाहता है बातचीत हो। अमेरिका के पास मामला यह है कि विड्रॉल के बाद अब क्या, आपने सैंक्शन लगा दिया, आपने इंडिविजुअल सैंक्शन लगाया, जवाद ज़रीफ पे आपने सैंक्शन लगाया, उसके बाद आखिर क्या? नहीं, अभी रिसेंटली जो सदर ट्रंप का भी एक ट्वीट था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने कहा है कि इसको और सख्त किया जाए फाइनेंशियल उसको। हाँ, ये सख्त कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि उस पर ईरान को किस हद तक प्रेशराइज करेंगे। ईरान का जो पूरा का पूरा मामला जो इस खित्ते में है, ईरान पॉलिसी उसकी पर और एग्रेसिव है। ईरान भी बहुत अपने आप को स्मार्टली सारे डेवलपमेंट को रीड कर रहा है, और ईरान की डिप्लोमेसी दुनिया में बहुत ही वो सैंक्शन में जीना सीख गया, ये भी कह सकते हैं। ये सैंक्शन नया नहीं है, वो पिछले 40 साल से सैंक्शन सीख रहा है। उसकी इकोनॉमी, उसकी जो लोगों के अंदर जो रेसिलियंस है वो बहुत ही पावरफुल है। तो अगर आप किस हद तक सैंक्शन ले जाएंगे, आप सैंक्शन लगाया आपने, इंडिविजुअल सैंक्शन लगाया आपने, एक नए तरह का आपने अलायंस बनाया, इस्लामिक नेटो बनाया आपने, सऊदी अरब इजराइल को आप साथ लेके आए, आपके हाथ में डिप्लोमेटिक जितने भी हथकंडे थे सब आपने अपनाए, लेकिन ईरान की जो उस खित्ते में जो सियासत है उसको आप रोक नहीं पाए। देखना ये होगा कि अब आगे ये जो क्या रुख इख्तियार करते हैं, क्योंकि अब वक्त जो है वो ट्रंप का कम होगा, क्योंकि वहाँ इंतखाबात करीब आ जाएंगे, उनको कोई ना कोई रुख रवैया अख्तियार करना ही पड़ेगा। और ये भी है कि अगर आप देखिए ना, जो ट्रंप की जो पहली कैंपेन थी उनका जो पूरा का पूरा फोकस था कि हमको ईरान को सबक सिखाना है, हम न्यूक्लियर डील से विड्रॉ करेंगे, इन्होंने ये कर लिया। लेकिन अब जाहिर बात है वहाँ की आवाम को बताने के लिए क्या है उनके पास कि हाँ भाई ईरान का क्या हुआ। नहीं, वो दबाव में नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके पास 1+5 जो उसने डील की थी बड़ी समझदारी से की और थी। एक चीज और भी बताता चलूं कि वो उसने ईरान की जो न्यूक्लियर डील है यूरोप को डिवाइड कर रखा है। अमेरिका यूरोप की भी डिवीजन है, अरब वर्ल्ड में डिवीजन है। वो यही समझदारी की उसने बाकी लोगों को भी शामिल किया इसमें। कतर और सऊदी में डिवीजन हो गया है, कुवैत न्यूट्रल है, ओमान जीसीसी बिल्कुल एक उस पे खा हुआ है, बटा हुआ है। चलिए देखना इसमें आगे क्या होता है, लेकिन नज़र रखनी पड़ेगी, हम तो इस पर नज़र रखे हुए हैं। लेकिन आलम इस्लाम इस हफ्ते में यहाँ वक्त है मुख्तसर वक्फे का, लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। हम चलते हैं काबुल की तरफ, और जैसे पिछले दिनों हमने देखा था कि तालिबान और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत थी, जो मुज़ाकरात थे, वो अचानक बंद कर दिए गए, और उसके बाद जो है काबुल की क्या हालत है, अफगानिस्तान की क्या हालत है, वो ये खबर बताती है। अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत काबुल एक मरतबा फिर धमाके से दहल उठा। दरअसल अफगानिस्तान में सदारती इंतखाबात में 2 हफ्तों से भी कम वक्त बाकी रह गया है, और इन दिनों इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। अफगान तालिबान इस इंतखाबी अमल को सबोताज करने की धमकी दे चुके हैं, और यही वजह है कि धमाका अफगान सदर अशरफ गनी की इंतखाबी रैली के करीब किया गया। अफगान वज़ारत दाखिला के तर्जुमान नुसरत रहीमी के मुताबिक हमलावर एक मोटरसाइकिल पर सवार था, और उसने रैली की तरफ जाने वाले रास्ते पर चेक पॉइंट पर खुद को धमाके से उड़ा लिया। काबुल के एक अस्पताल के सरबराह डॉक्टर कासिम संगीन ने बताया है कि इस खुदकुश धमाके के नतीजे में 32 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं। इनका कहना है कि हलाक और जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। काबुल में जहां ये हमला किया गया उसके करीब ही नेटो और अमेरिका के सिफारती दफातर वाक़े हैं। बताया जाता है कि रैली के करीब हमले के बाद काबुल में अमेरिकी सिफारतखाने के करीब भी एक धमाका किया गया। काबिल गौर है, हालिया दिनों में अफगानिस्तान में तालिबान के हमलों में शिद्दत आ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में अगस्त के महीने में पुरतशद्दुद हमलों और कार्रवाइयों में रोजाना औसतन 74 अफराद हलाक हुए, जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। डॉक्टर फजल रहमान साहब,
یہ بھی تقریباً صدر ٹرمپ کا ایک اور ٹیسٹ کیس ہے، جیسے ایران کا تھا ویسے ہی افغانستان کا۔ یہ بتائیے کوئی مذاکرات آپ افغانستانی گورنمنٹ، ایک لیجٹمیٹ گورنمنٹ ہے، اس کو آپ مائنس کر کے اس سے مذاکرات کر رہے ہیں جو بہت زیادہ دن پہلے تک آپ کے لیے ایک دہشت گرد تنظیم تھی، تو یہ تو طالبان کو آپ لیجٹمائز کر رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ گورنمنٹ جس کو جنتا نے چنا ہے، عوام نے چنا ہے، اس کو آپ ڈی لیجٹمائز کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس پیس کی کیا گارنٹی، اگر طالبان سے اگر کوئی معاہدہ ہو بھی جاتا تو کیا گارنٹی کہ اس پیس کی لائف یا وہاں پہ اس کا ایگزیکیوشن ہو پاتا؟ نہیں، ابھی سے یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں 28 ستمبر کو، تو اس کے بعد تو ان کو لگ رہا ہے طالبان ہی آئے گا۔ نہیں، ان کو لگ تو رہا ہے، لیکن طالبان نے اس کا بائیکاٹ بھی کیا۔ طالبان کی دیکھیے کامیابی دیکھیے، ان کا وہ دیکھیے، ان کا کانفیڈنس دیکھیے، اور میرے خیال میں امریکہ سے مکالمے کے بعد اور مذاکرات کے بعد ان کے اندر ایک الگ طرح کی ایک اور کانفیڈنس آیا ہے کہ ہم نے سپریم پاور کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ میں نے بلایا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ریلی میں جائے گا تو ہم اٹیک کریں گے، اور انہوں نے کیا۔ اور دیکھیے حالت یہ ہے کہ اشرف غانی صاحب بہت ساری ریلیاں اسکائپ سے کر رہے ہیں، وہ تو جس ملک کے پریزیڈنٹ کو اتنا پاپولرٹی یا اتنی مقبولیت نہیں ہے، تو اس ملک کی سیکورٹی کو ایک باہر کی ایجنسی کس طرح سے پروٹیکشن دے سکتی ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ امریکہ کئی علاقوں میں تو افغانی پولیس نے بھی سرنڈر کیا ہے طالبان کے معاملے میں، تقریباً ابھی یہ رپورٹ آ رہی ہے 40 سے 50% جو افغان ٹیریٹری ہے اس پہ طالبان کا قبضہ ہے۔ تو یہ پورا کا پورا جو مذاکرات تھا، یہ شروع ہونے سے پہلے اس کا مستقبل پتہ تھا کہ یہ فیل ہو جائے گا۔ اور سوال یہ بھی کہ یہ اگر یہ کہیں جس طالبان کے جس دھڑے کو آپ نے بلایا ہے بات کرنے کے لیے، صرف وہی طالبان نہیں ہے، اس کے بہت سارے فیکشنز ہیں۔ مان لیجیے ایک طالبان سے آپ نے معاہدہ کر لیا جو دوسری طالبان کی دھڑے ہیں، جو دوسرے فیکشنز ہیں۔ ایک بات اور بتاتا چلوں میں آپ کو، یہ گڈ طالبان سے بات ہو رہی ہے، لیکن بیڈ طالبان میں بہت سی برانچز ہیں، اور اس میں کچھ لوگوں کے یہ ہے، دیکھیے صرف طالبان نہیں ہے، اس میں ملیشیاز ہیں، وارلارڈس ہیں، ڈرگس ٹریڈر ہیں، جن کے لیے افغانستان کے وار میں ان کی اپنا اکنامک انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے۔ وہ چاہتے نہیں کہ پیس ہو، جس کو ہم کہتے ہیں وار اکانومی۔ تو اس خطے میں ایک وار اکانومی نے شکل لے لی ہے، جو چاہتے ہیں وار چلتا رہے، مدد آتی رہے، بات چیت ہوتی، سب چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہیں۔ بھارت کا بھی اس میں کہیں نہ کہیں رول ہونا چاہیے، نہیں لیکن کیونکہ ہم دیکھیں، ہم تعمیری طور پر وہاں پر بہت کام کر رہے ہیں، لیکن جب اگر آپ طالبان یا کسی سے بھی بات چیت کرتے ہیں اس میں بھارت کو نہیں شامل کرتے تو وہ بھی غلط ہے۔ نہیں، بالکل بری طرح غلط ہے، لیکن اس کا جو ریفلیکشن ہے وہ ہمارے پڑوسی ممالک کی جو سیاست ہے اس کا وہ نتیجہ ہے، اس میں جس طرح سے چیزیں ہیں۔ اور ہندوستان کا رول وہاں پہ بہت ہی تعمیری رہا ہے، بہت ہی کنسٹرکٹیو رول انڈیا نے پلے کیا۔ وہاں کی اسمبلی نے جو سمبولزم ہے ایک ڈیموکریسی کا، ایک جمہوریت کا، اس نے بنوایا، اور افغانستان نے بہرحال ایک انڈیا کی، ایک انڈین پبلک کی، عوام کی، لیڈرشپ کی، جو اور ملکوں کا جو رول وہاں پہ ہے اس سے ہندوستان کا جو رول ہے مختلف مانا جاتا ہے۔ وہاں کی حکومت بھی مانتی ہے، وہاں کی عوام بھی مانتی ہے، لیکن چونکہ گلوبل سیاست جو جس طرح رخ لیتی ہے، وہاں بہت سارے اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، اپنی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہوتے ہیں۔ لیکن سوال یہ کہ جس انٹرسٹ کی ہم بات کرتے ہیں، جو اصل وکٹم ہے اس کا انٹرسٹ ہو کے ہم سب کے انٹرسٹ کا دھیان رکھیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سعودی عرب میں خواتین عبایا اور برقعے کے بغیر اپنے گھروں سے باہر قدم نہیں نکالتی تھیں، تاہم ولی عہد محمد بن سلمان کی جانب سے سعودی عرب میں سنیما ہال اور نائٹ کلب کھولے جانے کی اجازت دیے جانے کے بعد یہاں کئی طرح کی تبدیلیاں نظر آنے لگی ہیں۔ ریاض میں ایک شاپنگ مال میں خاتون جب مغربی لباس میں داخل ہوئی تو لوگ حیران رہ گئے اور ان کی تصویر وائرل ہونے لگی، جسے بین الاقوامی میڈیا نے بھی کافی دکھایا۔ آپ بھی دیکھیے۔ سعودی عرب میں برقعے سے باہر نکلنا چاہتی ہیں خواتین۔ ریاض کے شاپنگ مال میں مغربی لباس میں سعودی خاتون۔ سعودی خاتون کے مغربی لباس میں گھومنے کی تصویریں وائرل۔ سعودی عرب میں کچھ خواتین روایتی عبایا پہننا کر رہی ہیں ترک۔ سعودی عرب میں کچھ خواتین روایتی برقع پہننا بند کر رہی ہیں۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے ایک شاپنگ مال میں بغیر برقعے کے مغربی لباس زیبتن کیے جب ایک خاتون گئیں تو انہیں آتے جاتے گھورتی نگاہوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مشل الجلود نامی یہ خاتون 33 برس کی ہیں، جو کہ عبایا چھوڑ مغربی لباس میں نظر آ رہی ہیں۔ مشل الجلود مغربی لباس میں شاپنگ مال کے باہر گھومتی پھرتی نظر آ رہی ہیں۔ یہ خاتون جب مغربی لباس میں شاپنگ مال کے باہر گھوم رہی تھی تو وہاں موجود لوگوں کو کافی حیرانی بھی ہو رہی تھی، کیونکہ سعودی عرب میں ایسا پہلی بار دیکھا جا رہا تھا کہ خواتین اس طرح اپنے گھروں سے باہر قدم نکال رہی تھیں۔ مشل الجلود کے علاوہ 25 سالہ
मनाहिल अल अताबी ने भी अबाया पहनना छोड़ दिया है। उनका कहना है कि वो पिछले 4 महीने से रियाज में बगैर बुर्के के रह रही हैं और वो इसी तरह जीना चाहती हैं जैसे कि उनकी अपनी ख्वाहिश है। उन्होंने कहा कि किसी को भी वो पहनने के लिए हरगिज मजबूर नहीं करना चाहिए जो कि वो चाहती ही नहीं। गुज़िश्ता साल मोहम्मद बिन सलमान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि ड्रेस कोड में रियायत दी जा सकती है। मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि अबाया और बुर्का इस्लाम में लाजमी नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कोई रस्मी कानून न बनने की वजह से ये चलन बरकरार है। काबिल गौर है कि सऊदी अरब में खवातीन अबाया और बुर्के के बगैर अपने घरों से बाहर कदम नहीं निकालती हैं। ताहम वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सऊदी अरब में सिनेमा हॉल और नाइट क्लब खोले जाने की इजाजत दिए जाने के बाद यहाँ कई तरह की तब्दीलियां नुमायां होने लगी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। आलम इस्लाम इस हफ्ते में चलते चलते एक नजर डालते हैं मुख्तसर मगर अहम खबरों पर। न्यूज़ इन ब्रीफ। अफगानिस्तान में तालिबान के एक ट्रक बम हमले में दर्जनों अफराद हलाक और जख्मी हो गए। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दूसरी जानिब नंगरहार में अफगान दस्तों की फजाई कार्रवाई में भी मुतादिद आम शहरियों की हलाकत हुई है। अफगान फौज के फजाई हमले का हदफ दाइश के दहशतगर्दों का एक ठिकाना था, लेकिन इनके बकौल फौजी तैयारी ने गलती से खेतों में मौजूद किसानों पर बमबारी कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने अपने सऊदी अरब दौरे के दौरान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। सऊदी अरब ने तेल तनसीबात पर हमला मामले में ईरान के मुलविस होने का सबूत पेश किया। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने कहा कि अमरीका सऊदी अरब की खाम तेल की तनसीबात पर हालिया हमलों के बाद इसके हक में दिफा की हिमायत करता है। सऊदी अरब ने अमरीका की क़यादत वाली उस इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली है जो मशरिक़ वस्ता के पानियों में सलामती को यकीनी बनाने के लिए फ़ाल है। सऊदी अरब में तेल की तनसीबात पर हमलों के बाद रियाज हुकूमत इस इत्तेहाद का हिस्सा बनी। सऊदी हुकूमत के मुताबिक इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कंस्ट्रक्ट नामी इस इत्तेहाद में शमूलियत से अहम आबी तिजारती रास्तों की सिक्योरिटी और मुमकिन हमलों का मौसर जवाब दिया जा सकेगा। कुवैत ने सऊदी अरब की तेल तनसीबात पर हमलों और खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट कर दिया है। कुवैत के नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा अल शेख सब्बाह अल खालिद ने कहा कि सऊदी अरब के आयल तनसीबात पर हमले के बाद खित्ते में काफी कशीदगी पैदा हो गई है। अल शेख सब्बाह अल खालिद ने कहा कि इसलिए इनकी हुकूमत ने अपनी मुसल्लह अफवाज को हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत दी है। ईरान के सदर हसन रूहानी का कहना है कि अगर अमरीका खैर सगाली का मुजाहरा करता है तो तेहरान मुज़ाकरात के लिए तैयार होगा। हसन रूहानी ने तेहरान में कहा कि अगर अमरीका इनके मुल्क पर दबाव बरकरार रखेगा तो मुज़ाकरात मुमकिन नहीं हो सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि इस तरह के दबाव में आकर कोई भी मुल्क मुज़ाकरात की मेज पर नहीं आएगा। रूहानी के मुताबिक अगर अमरीका वाकई मुज़ाकरात चाहता है तो उसे खैर सगाली का मुजाहरा करना होगा। तुर्की के मुख्तलिफ हिस्सों और शिमाली स्पायर्स में बगावत के इल्जाम में मजीद 223 बरसर खिदमत फौजियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए फौजियों में बर्री, फजाई और बहरिया के एहलकार शामिल हैं। गिरफ्तार हुए फौजी एहलकारों पर 2016 में नाकाम फौजी बगावत के नेटवर्क इनकरा से ताल्लुक का इल्जाम लगाया गया है। गिरफ्तार हुए 100 एहलकारों का ताल्लुक बर्री फौज, 41 का ताल्लुक फजाइया जबकि 32 का ताल्लुक बहरिया से है। आलम इस्लाम इस हफ्ते में यहाँ वक्त मुख्तसर वक्फे का लौट कर आते हैं इस ब्रेक के बाद। आलम इस्लाम इस हफ्ते में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। तुर्की, रूस और ईरान के दरमियान खाना जंगी के शिकार मुल्क शाम में नया आईन तश्कील देने पर इत्तेफाक हो गया है। रूस, तुर्की और ईरान के सदूर ने ऐलान किया कि वो शाम में 9 साल से जारी खाना जंगी के खात्मे और सियासी बहरान के हल के लिए नया आईन तश्कील देने पर मुत्तफिक हो गए हैं। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ने कहा कि शाम के नए आईन की राह में हायल तमाम रुकावटें दूर हो गई हैं और इस ज़िम्ने एक कमेटी कायम की जाएगी जो कि शाम का नया आईन तहरीर करेगी। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि हम शाम की इक़्तिदार आला की हिफाजत के लिए कोशां हैं। हसन रूहानी ने इस उम्मीद का इजहार किया कि शाम में 2020 या फिर 2021 में नए इंतखाबात हो जाएंगे। वहीं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि फरीकीन इस बात पर मुत्तफिक हो गए हैं कि शाम में आईन साजी के लिए एक आईनी कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें हुकूमत, अपोजिशन और गैर जानिबदार सियासी हलकों के नुमाइंदे शामिल होंगे ताकि जिनेवा में ये मिल बैठकर मामलात को तेजी से आगे बढ़ाएं। पुतिन ने कहा कि हमारी मुश्तरका कोशिशों की वजह से ही शाम में पुरतशद्दुद वाक़यात में कमी आई है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस खित्ते से दहशतगर्दी के खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए।
वाज़ेह है कि शाम में 9 साल से जारी खाना जंगी में ईरान और रूस सदर बशार अल असद के इत्तेहादी हैं, जबकि तुर्की शाम में बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलटने में कोशा बागियों की हिमायत करता आया है। तुर्की ने शाम में जारी खाना जंगी के बाद से अब तक तकरीबन 36 लाख शामी महाजीन को पनाह दे रखी है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगान ये वार्निंग दे चुके हैं कि अगर मगरबी ममालिक ने महाजीन का बोझ उठाने और महफूज जोन के क़याम में तुर्की का साथ ना दिया तो वो मगरबी ममालिक से मुंसलिक अपनी सरहद खोल देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जिस मुल्क का मसला है उस मुल्क से कोई भी शामिल नहीं है। शाम बशारुल असद इसमें नहीं है और ये 3 ममालिक इसमें शामिल होकर वहाँ का आइन तश्कील दे रहे हैं। तो ये इसको आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ अच्छा मुस्बत वो है, लेकिन इसको आप कैसे देखेंगे? नहीं, मुस्बत तो है, कम से कम चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। हाँ। कोई भी मुज़ाकरात बुरा नहीं होता है, उससे कुछ चीज़ें हम पीछे से हट के हम आगे आते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिसका मुल्क है, जो मुल्क का सरबराह है या उसके जो कायदीन हैं, उसको हटा करके आप किस तरह का आइन तश्कील दे रहे हैं। और यही नहीं, देखिए अगर आप सीरिया को लेके अगर देखें पिछले 8 साल की जो पूरा उसका सफ़र है, तो सिर्फ ये नहीं कि किस तरह से इस चीज़ों को हाईजैक कर लिया गया है। अगर आप अव्वल दिनों में देखें आप तो वहाँ सऊदी अरब और ईरान थे। आज सऊदी अरब क्या कह रहा है किसी को कुछ नहीं पता। ईरान का जो रोल था वो भी अब मेरे ख्याल में लगता है कि सेकेंडरी हो गया है। अब रूस आगे आ गया, टर्की ने इंटर किया, अब टर्की सेकंड हो गया। तुर्की का तो कुर्दिस्तान जी, लेकिन आज जो है पूरी दुनिया में सीरिया के नाम पे रशिया क्या कह रहा है वो अहम है। अमेरिका क्या कह रहा है हम नहीं जानते, बशार साहब क्या कह रहे हैं हम नहीं जानते, किंग साउथ फैमिली क्या कह रही है वो हम नहीं जानते, ईरान क्या कह रहा है हम नहीं जानते। तो इससे तो जो हाईजैक करने का जो ये है कल्चर आ गया है। और जब पूरे की पूरी इश्यूज़ को, अब वार को हाईजैक करते आप हैं, नेगोशिएशन को भी हाईजैक करते हैं आप हैं, UNSC को भी हाईजैक कर लेते हैं आप हैं, विटोस करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। तो इससे लगता नहीं कि पीस का कोई मुस्तकबिल है। और आइन तश्कील की बात तो पिछले 6-7 साल से आ रही है। ये मेरे ख्याल में ये 5वां अंकारा में 5वीं मीटिंग थी ये। अगर अस्थाना प्रोसेस में कम से कम 10वीं मीटिंग हो चुकी है। लेकिन चीज़ें वहीं की वहीं हैं। उसकी वजह यह है कि हमारा जो उस मुल्क का जो असल कायद है, जो उसकी टीम है, जो उस मुल्क की इंटरेस्ट को समझती है कि हमारी मसलहतें क्या हैं, उससे आप बात नहीं करते हैं। एक तरह का इम्पोजिशन है और पीस को कभी इम्पोज नहीं कर सकते। तो खैर एक और ऐसा ही मसला है म्यांमार में 6 लाख रोहिंग्या नस्लकुशी के खतरे का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशी मिशन ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए इस बात का इंकशाफ किया है। देखिए रिपोर्ट। रोहिंग्या मुसलमानों को खतरा, 6 लाख रोहिंग्या मुसलमान नस्लकुशी के खतरे का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशी मिशन ने जारी की रिपोर्ट। मुल्क छोड़कर जाने वाले 10 लाख अफराद की वतन वापसी के आसार नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशी मिशन ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में इस बात का खदशा जाहिर किया गया है कि म्यांमार की फौज की वजह से मुल्क छोड़कर जाने वाले 10 लाख से ज्यादा अफराद अब मुमकिना तौर पर वतन वापस नहीं आएंगे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि म्यांमार की रियासत रखाइन में रहने वाले 6 लाख रोहिंग्या अब भी खौफ व दहशत के माहौल में सांसें लेने पर मजबूर हैं। रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार अपने नस्लकुशी के इरादों को जारी रखे हुए है, जिसके बायस रखाइन में बाकी बच जाने वाले रोहिंग्या अफराद नस्लकुशी के संगीन खतरे का शिकार हैं। रिपोर्ट में ये इंकशाफ भी किया गया है कि म्यांमार अपने गलत कामों की तरदीद करते हुए अपने खिलाफ सबूतों को जाया करता रहा है। म्यांमार वो जमीनें जब्त कर रहा है जहाँ से रोहिंग्या अफराद को बेदखल किया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों के मुताबिक रोहिंग्या मुसलमान गैर इंसानी माहौल में रह रहे हैं। इनकी 40,000 तामीरात 2017 के क्रैकडाउन के दौरान तबाह कर दी गई थी। अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन ने सिक्योरिटी काउंसिल से सिफारिश की है कि वो म्यांमार का केस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को भिजवाए और इस पर एक ट्रिब्यूनल तश्कील दिया जाए। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशकारों के पास ऐसे 100 ओहदेदारों की फहरिस्त है जो नस्लकुशी, इंसानी और जंगी जराइम में मुलव्वस रहे हैं। दूसरी जानिब म्यांमार की फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा की टीम की तहक़ीक़ात को मुस्तरद करते हुए इसे यकतरफा करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। और आखिर में आपको छोड़ कर जा रहे हैं एक ऐसे वीडियो के साथ जो कि वायरल हो चुका है और जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि इस मासूम जिंदगी को पाकिस्तान के कराची शहर से दुबई इसी हालत में स्मगल किया गया था। अब मासूम सवाल कर रहा है कि किस बेहिस जहान में उसने आंखें खोली हैं।
مجھے دیجیے اجازت، اور اگلے ہفتے پھر شامل ہوں گے. تب تک کے لیے خبردار رہیے، بیدار رہیے. فضل الرحمان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں شامل ہے. آداب.